Good morning, students of class 5. Of vitamin C causes scurvy. Our dear children, dear students, we all are aware that nowadays the consumption of lemon has been increased rapidly. कि आज की तारीख में नींबू के उपयोग का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ गया है। क्योंकि आज की तारीख में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए विटामिन सी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऐसे स्थिति में मैं बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा कि विटामिन सी को हमेशा अपने बॉडी में बैलेंस करें। और विटामिन सी कहाँ से आता है बेटा, तो ये मैं आपको बताते चलूँ। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी। स्कर्वी एक प्रकार का डिजीज़ है जिसमें दांत वगैरह का जो गम्स वगैरह होते हैं उस सब में आपको वोबली टीथ हो जाता है, पेन इन जॉइंट्स हो जाता है, लॉस ऑफ वेट इंडिकेट्स दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। इट कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग सिट्रस फ्रूट्स लाइक आंवला, टोमेटो, ऑरेंज, लेमन एट्सेट्रा। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है और जिसमें दांत के मसूड़ों में खून आने लगता है, उसके बाद दांत हिलने लगता है और कभी कभार जॉइंट्स वगैरह में भी दर्द होता है और वेट में कमी आनी शुरू हो जाती है, जो एक प्रकार से उसको सही करने के लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। और विटामिन सी किन किन चीज़ों से ज़्यादा आता है बेटा, उसमें है आंवला, टमाटर, नारंगी और नींबू। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, स्प्राउट्स आर ऑल्सो गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। उसके बाद अभी हम लोग जो खासकर ये जो सारे बच्चों को मैं कहता हूँ कि एक बार सुसुम पानी में आप नींबू का थोड़ा दे करके अवश्य इसका उपयोग करें। देखिए, आज की तारीख के लिए मैं आपको बता दूं कि इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए हमारे पास में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। खासकर विटामिन की क्वांटिटी को मजबूती से रखना पड़ेगा। विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। These 3 are very essentials to empower our immune system in our body, and immune system will fight against the viruses and bacteria in our body. So let's we have a look. Deficiency of vitamin D in food causes rickets. विटामिन डी की कमी से एक प्रकार का रिकेट नाम की बीमारी हो जाती है। खासकर ये बच्चों में अधिक हो जाता है, जिसमें भी हड्डियों में वीकनेस आ जाती है। सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट रिकेट्स बाय टेकिंग मिल्क, कैबेज, एग्स, बटर एंड कॉड लिवर ऑयल। Vitamin D along with calcium and phosphorus makes our bones and teeth hard and strong. We get calcium from milk and its products. Milk is complete food. तो आप करते हैं बेटा, हम आपको विटामिन सी के डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी ऑफ scurvy disease due to scurvy wobbling of teeth, loss of weight, pain in joints, and bleeding of gums.
building the these type of diseases okay. Sources of vitamin C. विटामिन सी के कौन कौन से स्रोत हैं? तो सबसे ज़्यादा है आंवला, लेमन, लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, पल्सेस, टोमेटो, are rich in source of vitamin C. Now another deficiency of vitamin D in food. Causes rickets. A child suffering from rickets has soft and weak bones. Sunlight is a good source of vitamin D. Another sources we are milk, butter, eggs, cod liver oils, dear children, this is my opinion, and I have heard from that key expert of doctors. While
if we boost our immunity, we must have to use vitamin A, bio D. This is a type of vitamin D. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin C. These four types of vitamins are necessary nowadays, very essential in our diet. Iodine causes goiter, a type of disease. Iodine is also very important minerals for which is necessary to our body. In disease, a gland in the neck region swells. Goiter can be prevented by taking ionized salts. Seafood is also a source of iodine. Due to the deficiency of iodine, a swollen part type of disease occurring the knee. It can be prevented by using ionized salt. Seafood are also rich in or also rich in iodine. Another type of disease is anemia. It is caused due to the deficiency of iron in the body. Due to the deficiency of iron in the food. The reduces hemoglobin in blood, because of which the blood is unable to carry as much as oxygen it should be. Due to the deficiency iron, the quantity of hemoglobin becomes low. And
does not carry the sufficient amount of oxygen Iron is found in apples. Apples, meat, banana, guava, spinach, brinjal, jaggery, meat. etc. Another point, kwashiorkor. It is a type of disease which is caused due to the deficiency of protein. Which is caused due to protein. प्यारे बच्चों, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि प्रोटीन जो है ज़्यादातर जितने भी प्रकार के हम लोग अन्न खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब में प्रोटीन पाया जाता है। और एक तरह से माल न्यूट्रिशन की वजह से भी बच्चों में इस तरह की डिजीज़ आ जाते हैं। आप बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर हम यही 1-2 महीना अगर घर पे रह लेते हैं तो हम लोगों का ज़िंदगी सलामत हो जाएगा। इसे